سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈینگی سے ہلاکتوں سے متعلق بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور میں ڈینگی سے 14 افراد جاں بحق ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت کی ڈینگی سے ہلاکتوں کا ڈیٹا چھپانے میں ناکام کوشش، سٹی 42 نے ڈینگی کا درست ڈیٹا ڈھونڈ نکالا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری موجود ہیں۔ جی زاہد چودھری بتائیے۔ شہر میں ڈینگی وائرس پورے زور پر ہے، لیکن محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نہ صرف جو ہے وہ ڈینگی کے مریضوں کا بلکہ ڈینگی سے ہونے والی جو اموات ہیں ان کا ڈیٹا چھپانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ تمام اعداد و شمار کو چھپایا جا رہا ہے، اور روزانہ جو ڈینگی بخار کے محدود پیمانے پر جو اکٹھا ہونے والا ڈیٹا ہے، جس میں بہت محدود اسپتال ہیں جہاں سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس ڈیٹا میں سے بھی 30 سے 40% جو ہے وہ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ صرف اعداد و شمار جو محدود پیمانے پہ وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب یہ انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق کہ اس وقت شہر میں جو اموات ہیں ڈینگی بخار سے وہ مجموعی طور پر رواں سال کے دوران 14 ہو چکی ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 شہری جو ہیں وہ ڈینگی بخار ڈینگی ہیموریجک فیور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے، جن میں نادیہ بی بی شامل ہیں، جن کی جو ہے وہ گنگا رام اسپتال میں 8 اکتوبر کو موت واقع ہوئی، جبکہ تسمیہ بی بی جو ہیں وہ میو اسپتال میں 10 اکتوبر کو دم توڑ گئیں، اور محمد ارشاد نامی شہری جو ہے وہ فاروق اسپتال علامہ اقبال ٹاؤن میں 14 اکتوبر کو زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ تمام وہ مریض ہیں جن کو ڈینگی ہیموریجک فیور سے جن کی موت کو لیبل کیا گیا، تصدیق کی گئی اسپتالوں کی جانب سے۔ یہ ڈیٹا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو موصول ہوا، لیکن اس کے باوجود ان ڈیتھس کو جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے چھپا لیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو ڈیٹا ہے پیشنٹس کا اس کو بھی جو ہے وہ ابھی تک چھپانے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈینگی سرویلنس کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہ نہیں پتہ چل پا رہا کہ شہر کے کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں، کہاں پہ ضرورت ہے سرویلنس کی، کیونکہ ڈیٹا جب درست اعداد و شمار جب جو ہے وہ میسر نہیں ہوں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ روک تھام کی حکمت عملی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہ صورتحال ہے جس کا اس وقت سامنا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ حکومت کو سب اچھا دکھانے کے لیے نہ صرف جو ہے وہ ڈینگی بخار کے مریض بلکہ ڈینگی بخار سے ہونے والی اموات ظاہر چودھری بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ یہ چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کی الیکشن کمیشن میں کل طلبی ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن التوا میں ڈالنے پر طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل چیف سیکرٹری سے جواب طلبی کرے گا۔ پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ دیگر 3 صوبوں میں بلدیاتی الیکشن منعقد ہو چکے ہیں۔ کیسے کھوکر ایڈیٹر بیوروکریسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی کیسے کھوکر؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے کل چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل اور سیکرٹری بلدیات سید مبشر حسین شاہ کو طلب کر رکھا ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے ہیں۔ پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو التوا کا بار بار کیوں شکار ہو رہے ہیں، پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ پاس کیوں نہیں ہو رہا، اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے، اور اس حوالے سے یہ چیف سیکرٹری پنجاب سے بات پرس کی جائے گی۔ جبکہ دوسرا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ EVM الیکٹرانک مشین ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ذریعے جو ووٹنگ ہونی تھی الیکٹرانک، وہ محکمہ بلدیات نے اپنے جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں شامل کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ نہ کرائی جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے الیکٹرانک ووٹنگ کرانا، تو لہذا الیکٹرانک ووٹنگ ممکن نہیں ہے، لہذا وہ بلدیاتی ایکٹ میں شامل کیوں کیا گیا ہے، وہ کھانا نکالا جائے۔ ان 2 پر کل چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن قدر سلطان راجہ اجلاس کریں گے، اور پنجاب کے چیف سیکرٹری سے بات پرس کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسے کھوکر ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کہ صوبے بھر میں ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں 19 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اسکول ایجوکیشن کو 1 ارب اور ہائر ایجوکیشن کو 18 ارب ملیں گے۔ اسکولوں میں بچوں کی سہولیات کے اضافی فنڈ دیے جائیں گے۔ کالجز میں سہولیات سمیت یونیورسٹیز کی تعمیر پر مزید بجٹ دیا جائے گا۔ تو صوبے میں ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں اب اضافہ ہوگا۔ ایجوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں 19 ارب روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से ला अफसर जवाब समेत पेश ना हो सके। हाई कोर्ट ने वजारत पेट्रोलियम और दीगर फरीकेन को 26 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉ अफसर जवाब समेत पेश नहीं हुआ। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस समाअत का मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की तो अदालत में वफाकी हुकूमत का लॉ अफसर पेश नहीं हुए और सरकारी वकील की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि जो लॉ अफसर हैं वो दूसरी कोर्ट में मसरूफ है, जिसकी वजह से पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और करार दिया कि समाअत पे ना अदालत में जवाब जमा कराया जाए और साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का तरीक़ेकार के हवाले से भी रिपोर्ट जमा कराई जाए। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़ ये था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कुछ अर्सा पहले बढ़ाई गई, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर यह कम हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। तो अदालत से ये सदा की गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम जो है कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत जो है 2 रोज़ के लिए मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से इसका जवाब तलब किया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन समाअत के मुतालिक आगाह किया। सीबीडी ने कलमा चौक अंडरपास की तामीर 9 का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने सीबीडी बुलेवार्ड की तामीर और कलमा चौक अंडरपास की तामीर 9 का कॉन्ट्रैक्ट 4 अरब 22 करोड़ 90 लाख में हासिल किया है। मजीद तफसीलात जान लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये सीबीडी के अंदर मेन बुलेवार्ड बनाया जाना है और कलमा चौक के सारे प्रोसेस का जितना भी इस वक्त मेन बुलेवार्ड की जो रीमॉडलिंग है वो भी की जानी है। इस हवाले से 2 स्टेज में अंडरपास होंगे, जिसमें सीबीडी के अंदर दाखिल खारजी रास्ते पे अलग-अलग डबल स्टोरी जो है वो अंडरपास बनाए थे। इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट को अपनी शक्ल दे दी गई है। एनएलसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर दिया है और कम बिड देकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें 4 अरब 10 करोड़ से ज़ायद जो है वो इसकी लागत होगी। इस हवाले से अब काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी जारी कर दिया गया है और टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी आज या कल जो कंप्लाइंस ऑर्डर है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है दुरेनायाब, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्जी रजिस्ट्रार की तैनाती का मामला, रजिस्ट्रार की आर्जी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इस बारे में बात कर लेते हैं इमरान यूनस से। इमरान यूनस, क्या मतन है इस दरख्वास्त का, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्जी रजिस्ट्रार जो है ये जुमे के रोज एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया था और ये एडिशनल चार्ज जो है ये कंट्रोलर इम्तहानात रऊफ नवाज को दिया गया था और एसोसिएट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इम्तियाज शफी, उन्होंने रजिस्ट्रार की आर्जी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दे दी है और दरख्वास्त में ये बयान किया गया है कि आर्जी रजिस्ट्रार रऊफ नवाज जो है वो रजिस्ट्रार की जो मुश्तहर असामी है उसके भी उम्मीदवार हैं और रऊफ नवाज की बतौर आर्जी रजिस्ट्रार तैनाती जो है ये मुफादात का टकराव है और यूनिवर्सिटी की जानिब से जो मुश्तहर असामी है इस पर रेगुलर रजिस्ट्रार तैनात करने की बजाय रऊफ नवाज को नवाजने के लिए आर्जी तौर पर तैनात जो है वो किया गया है और डॉक्टर इम्तियाज शफी जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने रजिस्ट्रार की मतनाज़े तैनाती पर दरख्वास्त चेयरमैन, सिंडिकेट, वाइस चांसलर और एडिशनल रजिस्ट्रार के नाम जमा करवाई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। अब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करने जा रहा है। इम्तिहान में 1,75,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की है। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे करेंगे। बोर्ड की जानिब से पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन मालूम हो सकेगा। रोल नंबर 80029 पर SMS करके नताइज मालूम किया जा सकता है। तो आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 20 अक्टूबर को करेगा, जबकि इम्तिहान में 1,75,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की और नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे करेंगे। बात कर लेते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए। जी मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया जा चुका है और अब इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात के नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान इसी माह 20 अक्टूबर को किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 10 बजे जो है वो नताइज का ऐलान करेंगे। बच्चे जो हैं ऑनलाइन अपने नताइज मालूम कर सकेंगे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से और बजरिए SMS 80029 पर SMS
भेज कर भी रोल नंबर जो है वो नताइज मालूम किए जा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जुनेद रियाज, आपने हमें अपडेट किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबीना हाशिम रजा का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा, ओहदेदारान से मुलाकात की और छोटे दर्जे के कारोबार को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव हाशिम रजा का लाहौर चैम्बर का ये दौरा है। सीनियर नायब सदर जफर महमूद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, कारोबारी शख्सियात भी वहाँ पर मौजूद थी। मुलाकात में छोटे दर्जे के कारोबार को फरोग देने पर बातचीत की गई है। मैन होल कवर करने का सर्टिफिकेट, डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर से सर्टिफिकेट्स तलब किए हैं। हर एसी अपनी तहसील में मैन होल को कवर होने का सर्टिफिकेट जमा कराएगा। इस बारे में बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की जानिब से बड़ा एक हुक्मनामा जारी किया गया है, क्योंकि आए रोज मैनहोल कवर्स के गायब होने के जो खबरें हैं वो आती हैं, जिससे कीमती जानों का ज़िया भी होता है। तो अब फैसला ये किया गया कि मैनहोल कवर मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स जमा कराने के पाबंद होंगे। 500 तहसीलों में जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं अपने अपने एरिया में तमाम मैनहोल को कवर करने के बाद सर्टिफिकेट जो है वो डीसी लाहौर को जमा कराएंगे। तहसील शालीमार, तहसील सिटी, तहसील रायवंड और तहसील मॉल्टन के असिस्टेंट कमिश्नर्स को एक दिन में सर्टिफिकेट्स जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। कवर ना होने वाले मैन होल्स को फौरी तौर पर कवर किया जाए। अगर कहीं पर कोई वाकया पेश आया तो उसकी जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर मुतलका पर आयद की जाएगी। ये कहना है डीसी लाहौर का। जी बहुत शुक्रिया राउदुल शाह। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से जीपी फंड माहाना की शरह बढ़ा दी गई है। महकमा खजाना पंजाब ने जीपी फंड से नई कटौतियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी हां, आपको अपडेट करते चलें कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से जीपी फंड माहाना की शरह बढ़ा दी गई है। महकमा खजाना पंजाब ने जीपी फंड से नई कटौतियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के 600 से 1800 रुपए तक का माहाना कटौती होने जा रही है। ग्रेड 11 से 17 तक 1920 से लेकर 6350 रुपए माहाना कटौती होगी। ग्रेड 18 के अफसर की तनख्वाह से माहाना 7960 रुपए कटौती होगी। ग्रेड 10 के अफसर की तनख्वाह से 10,660 रुपए जीपी फंड की कटौती होगी। ग्रेड 20 के अफसर की बात करें तो ग्रेड 20 के अफसर की तनख्वाह से 11,950 रुपए फंड की कटौती होने जा रही है। ग्रेड 21 के अफसर की तनख्वाह से 13,250, ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह से माहाना 14,660 रुपए कटौती होने जा रही है। आगे बढ़ें, खबर शामिल करें खेल के मैदान से। आपको बताएं कि स्पोर्ट्स पंजाब टेनिस कोर्ट्स पर एटीएफ अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, इस टूर्नामेंट के हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। आज इस तरह नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स फॉर पंजाब का जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेनिस कोर्ट है वहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पे अंडर 16 चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है। चैंपियनशिप का ये इब्तदाई मरला है। इब्तदाई मरले में पाकिस्तानी जो अंडर 16 खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दूसरे मरले में एशियन खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया है। उनसे जानते हैं कि टेनिस के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से स्पोर्ट्स फॉर पंजाब की सरगर्मियाँ खासी तेज़ी से जारी हैं, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सेक्रेटरी साहब, हम देख रहे हैं कि बाकी बोर्ड्स तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह तेज़ी से स्पोर्ट्स फॉर पंजाब में इकदाम जैसे टेनिस कोर्ट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और स्पोर्ट्स की फ़रोग़ के लिए भी, तो क्या आप लोगों का अगला मिशन है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिससे आपने खुद ही बात की है, पहला मरला तो हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक हमारा इंटरनेशनल तो एक था, लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए ना ये ज़रूरी है कि प्रैक्टिस कोर्ट्स हों, एटलीस्ट 5। तो ये हमारे ये भी बन गए हैं। बच्चों के लिए भी आपके सामने हैं, 4 हमने बना लिए हैं। उसमें भी अब 2 या 4 दिन के अंदर वो टर्फ लग जाएगी। तो मकसद ये है कि हम अपने तमाम जो बच्चे हैं, अब रशीद मलिक साहब जैसे सीनियर लोग हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया, सामुल हक साहब से MOU साइन किया है। मकसद ये है कि वो अपनी इधर अकेडमी चलाएं। बल्कि मैंने तो जो परसों हमने डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर की एक मीटिंग बुलाई हुई थी, उसमें इनको गाइड किया है। उन्हें कहा कि यार 1 या 2 कोर्ट रिजर्व कर दें सिर्फ पब्लिक स्कूलों के लिए, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ए एक्सपेंसिव गेम। टेनिस आसान गेम नहीं है, गेम रैकेट है, बॉल्स हैं, तो उसको हम देंगे, क्योंकि प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड। तो हमने कहा ये आपका जी सुना आपने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने कहना था कि खेलों के साथ साथ असल मकसद जो था इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तामीर करना, उसके साथ साथ नौजवानों को डोपिंग और मनशियात के हवाले से आगाही देना है कि कितनी खतरनाक ये चीज़ें। इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते बाकायदा जो है प्रोग्राम भी स्पोर्ट्स पंजाब के जरिए बहुत शुक्रिया आपका।